So let's begin. If you remember, we just discussed in the last lecture, we discussed the finite state machines. And we discussed the difference between accept and recognize. These are the technical words used. We also defined a regular language. What do we mean by a regular language? It's a language that is recognized by some finite state machine. So if you have a language, if you have a set of strings that some finite state machine accepts that, and that finite state machine accepts nothing else, rejects everything else, then we call that language as regular language. So that's the definition of regular language. Then we question certain things. Is this set of all strings is regular or not? The answer is regular because there exists a finite state machine for it. And then we discussed language A is defined set of all strings having even number of ones. So is LA regular? So the answer is yes. LB is defined as a set of all the strings having odd number of zeros. Is LB regular? Okay, we came up with a finite state machine and we saw yes, that is also regular. And then I ask a question that if L1 is union of LA and LB, like this, where LA is regular and LB is regular, can you say L1 is regular? And what about L2? So that's where we stopped last time. So we are going to continue from here on. If you have any questions so far, please ask. सर ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स हमने पढ़ी थी उसका हमने जो एफएसएम बनाया था उसमें सिर्फ एक ही था Q1 और वो अपने साथ ही था, तो वो जो है ना वो वर्क कर रहा था हर एक स्ट्रिंग के लिए, तो वो तो सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए वर्क करना चाहिए ना. So if you want to come up with a finite state machine that accepts just empty string and nothing else, yes, you want to do that? Yes sir. So let's build an FSM that recognizes a language with a language having only empty string. Okay, let's have an FSM like this. Just to be notational, empty string is sometimes written as epsilon. मुझे अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज रिसीव हुआ है, ये अभी मैंने देखा है, कोई स्टूडेंट शायद कह रहे हैं कि उनको TOA का लिंक चाहिए. सो कैन एनीबॉडी पोस्ट द लिंक ऑन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट अगर कोई ग्रुप देख रहा है तो वहां पे उसको पता चल जाए. ओके, सो एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन से लिखते हैं इसको. It's nothing, I mean it's just empty. So that denotes empty string. That denotes empty string. Now, following FSM recognizes just an empty string and nothing else. Okay? Yes? Yes sir. So yeah,
So that's an FSM that recognizes the empty string. Should we move on? Is there any, do you have any other question? सर वो क्वेश्चन 4 जो है ना उसमें उसका आंसर करेक्ट बता दें कि क्या बनता है। अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो। ठीक है सर। Okay. So yeah, we are going to discuss that. So these are called the closure properties that we are going to discuss today. CLOSURE, I guess that's the spelling of closure. We want to see the following things. If LA and LB are regular, and here LA and LB doesn't mean to be specifically these languages. Any language LA and any language LB, okay? These are just examples, but LA can be any regular language, LB can be any regular language. And if these two languages are regular, LA and LB, and then let me call LC, or maybe I should call this as LU to denote union, LU as a union, where LA, remember LA is just a set and LB is just a set, and union can be defined, I mean union is very well defined on sets, okay? So LA is a set, LB is a set, the union is a set. What can you say about LU? Is LU regular? That's a question. Okay, that's one thing. The second thing is L intersection. Let me call this as I. LA intersection LB. Is LI regular? We know that LA is regular, LB is regular. What can we say about their intersection? Make sense? Yes? Yes, sir. And we have, let's say, LC, which is, let's say, complement of LA. That's complement. LA or LB, whatever. That's a complement. Let me write that more carefully. So LA, and that's the complement. So if I take complement of a language, the resultant language is regular or not. Okay. Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. And you can ask many questions. For example, if I say LAB, which is LA concatenated with LB, that is called concatenation. Let me define concatenation. The concatenation is if you have LA and you have several strings WA, WA1, WA2, these are several strings in language LA, and then you have LB, and you have several strings here, WB1, WB2, and so on. The concatenation operation is defined as you pick any string from A, you pick any string from B, and you just concatenate them from left to right. So for example, WA2 with WB1 is a string that will be there in LAB because that's a concatenation. So you pick all possible strings from, so think about the Cartesian product, think about the nested loop. You have WA1, you concatenate all the strings of B with it. Then you pick WA2 and you concatenate all the strings of B with it, and so on. So this LAB is the concatenation of A and B. Okay? Yes?
Yes, sir. So now my question is LAB regular? Okay. And one more question, LR, which is sometimes called as reverse. Let's say LR is the reverse of, let's say, LA. By reverse, I mean if you have a string, for example, 1001110, its reverse will be just 0111001. That's a reverse. These two are reverse of each other from left to right. Okay. Yes. Yes, sir. So that's a reverse of a string. What is a reverse of a language? एक लैंग्वेज का रिवर्स क्या होता है कि उसकी हर स्ट्रिंग को पकड़ें, उसको रिवर्स करके एक नए सेट में लिखते जाएं. जब सारी स्ट्रिंग्स रिवर्स होके एक नए सेट में आ जाएंगी तो वो जो नया सेट है उसको कहेंगे रिवर्स लैंग्वेज. तो क्या रिवर्स लैंग्वेज रेगुलर होती है? अगर एक लैंग्वेज रेगुलर हो तो क्या उसका रिवर्स रेगुलर होता है? These are so many questions. Make sense? Yes, sir. So हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह इन सवालों को जवाब देने की कोशिश करें. तो हम सबसे आसान पहले पिक करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका जवाब देना शुरू करते हैं. ठीक है? ठीक है सर. सो अगर देखें, अगर LU रेगुलर है तो हमारे पास एक FSM होना चाहिए जो LU को एक्सेप्ट करे. अगर LI रेगुलर है तो हमारे पास एक FSM होना चाहिए जो LI को एक्सेप्ट करे. अगर कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है, अगर लैंग्वेज रेगुलर है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है तो हमारे पास एक FSM होना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करे एंड सो ऑन. किसी भी लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए कि ये रेगुलर है या नहीं है, राइट नाउ हमारे पास सिर्फ एक ही टूल है अभी तक. इसके बाद और भी टूल हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक हमारे पास एक ही टूल है कि उस लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट स्टेट मशीन उस लैंग्वेज के लिए एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. अगर हम प्रूफ कर दें कि एग्जिस्ट करती है तो वी हैव प्रूवन दैट कि ये लैंग्वेज रेगुलर है. मेक सेंस? यस. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start with the easy one. Let's say you have a finite state machine. Let me call this machine as MA that accepts certain things. Let's say it accepts what was the string? Let's say this is our MA. Let's just redraw it. It accepts all the strings with even number of ones. Okay, let's just do that. This is just for an example. Although जो algorithm हम design करेंगे, this is not just for this example, but let's see an example. Even number of ones. So you have 1, you go there, and then you have 1, you go back. If you have zeros or empty string, you stay here, and if you have zeros, you stay here. That's our MA, let's say. It accepts all the strings that has even number of zeros. Let's also draw MB with the same example. Is defined as all the strings having odd number of zeros. So even number of ones and odd number of zeros. So let's just draw this. Here I'm drawing the MB machine with state names rather than Q. I'm writing the state names as P just to distinguish the states. So let me choose different color also. So let's say P1 is a state, then P2 is a state, P1 is a star state, P2 is the final state. So if you have odd number of ones, you accept. If you have ones, you stay there. If you have ones, you stay there.
and if you have a 0, you go there. Okay, I guess that was, let's say this is MA and MB, and now our goal, for example, is to, and whatever the language that MA accepts, ये जो machine A है, FSM, finite state machine A, ये जो language accept करती है उसको LA कहेंगे, और जो language of B है, machine B, that is LB. And both are regular because there exist FSM for both. So far, so good? Yes? Yes, sir. Yes, sir. So what about LC, which is the complement of LA? What about this? How can we come up with a machine, MC, that accepts all the strings that MA rejects and reject all the strings that MA accepts? मेरी बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लीमेंट यही होगा ना कि मशीन ए जितनी भी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, मशीन सी उनको रिजेक्ट कर दे, और मशीन ए जिन स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करता है, मशीन सी उनको एक्सेप्ट कर ले. इफ यू डू दैट, you have a machine that is doing the complement, that is accepting that is recognizing a language which is complement of A. Is that true? Yes, sir. So क्या करें? What should we do? जी, any idea? जी, any idea? What should we do? Q2 को फाइनल स्टेट बना दे. Q2 को फाइनल कर दें? चेक अच्छा, कर लें करके MA में. नहीं बना लेते हैं. Q2 फाइनल हो गई. अब Q1 को भी फाइनल रहने दें. नहीं, उससे नहीं, बस चेंज कर देना, उल्टा कर देना. और कुछ करना है? एजेस शेजेस एरो शेरो वैसे ही हैं जैसे पहले थे. मेरे ख्याल से चेक कर लें, वैसे मैंने अभी वैसे बताया. ये सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने, एंड इट मेक सेंस. जो पहले रिजेक्ट हो रहा था, अब जितनी भी स्टेट्स हैं जो रिजेक्टिंग स्टेट्स हैं या नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, उनको एक्सेप्टिंग स्टेट्स बना दें, और जो जितनी भी एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं यानी फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दें. तो जो चीजें पहले रिजेक्ट हो रही थी अब एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी, जो चीजें पहले एक्सेप्ट हो रही थी अब रिजेक्ट होना शुरू हो जाएंगी. सही है? ठीक है सर. That's Yes, it. sir. It's very simple. यानी जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल कर दें, और जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दें. बाकी कुछ भी चेंज ना करें, इनिशियल स्टेट वही रहेगी, एरोज वही रहेंगे, हर चीज वही रहेगी. तो पहले जो मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही थी, अब ये जो दूसरी मशीन आपने बनाई है एक सिंपल से ट्रिक के साथ, वो उसके कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी. विच मीन्स मशीन ए जिसको एक्सेप्ट करती है, मशीन सी उसको रिजेक्ट करेगी. मशीन ए जिसको रिजेक्ट करती है, मशीन सी उसको एक्सेप्ट कर लेगी. ओके? सर ये Yes. 0 और 1 इसी तरतीब के साथ लिखे रहेंगे. जी, दोबारा प्लीज सवाल दोबारा बोलें. आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ. सर ये 0 और 1 जब हमने कम्प्लीमेंट लिखना है उसी तरतीब के साथ लिखे रहेंगे, वो नहीं तब्दील होंगे, 1 की जगह 0 आ जाए. ये एरोज चेंज होने ही नहीं. देखें, आप ये चाहते हैं अगर आप MA के अंदर आपकी स्ट्रिंग फिनिश होती है Q2 में, तो वो रिजेक्ट होगी ना. मशीन ए के अंदर अगर आप स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट और वो Q2 के अंदर जाके खत्म हो जाती है, यानी आपने आखिरी अल्फाबेट रीड किया और Q2 में आप पहुंच गए और अब स्ट्रिंग खत्म है, तो आप उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देंगे. इस केस में वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी. यस? ठीक है सर. जी, एक और सवाल है शायद. जी सर जी. ये MA में अगर हम 0 की जगह 1 कर दे, 1 की जगह 0 कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है. ये इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे,
ये डुअल होता है, यानी 0 को 1 और 1 को 0 में इनके रोल्स को चेंज करना, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए हर स्ट्रिंग, एक मैं मिसाल के तौर पे ना एम ए के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, ये वो तमाम स्ट्रिंग्स हैं जो जिनमें इवन नंबर ऑफ वंस हैं। सो मैं लैंग्वेज ए की कुछ चीजें लिखने लगा हूं, कुछ मेंबर्स लिखने लगा हूं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी है इसमें। ठीक है, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एल ए। ठीक है, यस। यस सर। यस सर। एल सी क्या होगा? इट इज set of all bit strings minus LA, which means all the bit strings that are not in LA, that is LC. तो ये होंगी बिट स्ट्रिंग्स ही, 0 और 1 का रोल आपस में चेंज नहीं होना, जो 0 है वो 0 है, 1 1 है। मेक सेंस? यस सर। स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम यूं करते हैं, किसी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज में यूनिवर्सल से सेट minus- हमारा, यस, हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट ऑफ ऑल बिट स्ट्रिंग्स है। उसमें से आप सिर्फ वो रख लें जो एल ए में नहीं है, तो वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी ये जो स्टूडेंट ने सवाल किया, ये भी कोई गलत सवाल नहीं है। वो सोच रहे हैं कि एक बिट स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट लेना है। जैसे एक बिट स्ट्रिंग होती है ना, उसका नॉर्मली हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम वंस और जीरोस को आपस में स्विच करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, याद आया? आपने डीएलडी वगैरह में पढ़ा होगा। यस सर। तो बिट स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट एक फर्क चीज है। यहां पे जो हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो बिट स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो सेट का कॉम्प्लीमेंट है, और सेट एक लैंग्वेज है। मेक सेंस? यस सर। यस सर, इसलिए क्लियर। इसलिए जो ये स्टूडेंट बात कर रहे थे वो वंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे थे कि मैं 1 और 0 को आपस में स्वैप कर देता हूं। सो दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, लेकिन यहां पे हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट यानी स्ट्रिंग्स के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है। अगर अल्फाबेट्स 0 1 की बजाय कुछ और हों, ए बी सी, 4 अल्फाबेट्स हों, ए बी सी डी ई, तो अब वंस टूज कॉम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो हमें एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना। मेक सेंस? यस? यस सर। ओके, लेकिन यहां पे मैं ये मेंशन करता चलूं कि ये जो मैंने रिवर्स की बात की है, इसका मतलब हर स्ट्रिंग के रिवर्स, हर स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट की बात की है तो इसका कतई तौर पे मतलब हर स्ट्रिंग को कॉम्प्लीमेंट करना नहीं है, बल्कि जब मैं रिवर्स की बात करता हूं तो इसका मतलब हर स्ट्रिंग को जाके रिवर्स करना है। मेक सेंस? यस सर। So far we came to a point that this is regular. The answer is LC regular? The answer is yes. Let's see the rest of the things. Okay? Okay sir. Okay, let's talk about LU now. Union. If I take union of two sets, what do we mean by union? Think about union in this way कि अगर आपके पास मशीन A है और मशीन B है, तो कोई भी स्ट्रिंग जो या A में एक्सेप्ट हो जाए या B में एक्सेप्ट हो जाए, इन दोनों, यानी आप यूं समझें कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से 0 0 1 1 0 0 0 1। ये स्ट्रिंग अगर मशीन A एक्सेप्ट कर ले या यही स्ट्रिंग मशीन B एक्सेप्ट कर ले या दोनों मिलके एक्सेप्ट कर लें, दोनों ही एक्सेप्ट कर लें, तो ये जो स्ट्रिंग है ये यूनियन में मौजूद होगी। सही है? सो यूनियन में वो तमाम स्ट्रिंग्स होंगी जो लैंग्वेज ए में है एज वेल एज लैंग्वेज बी में है। उनमें कॉमन भी होंगी कई जो दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन है, वो भी होंगी। इन स्ट्रिंग्स की जो यूनियन में पाई जाएंगी, यानी जो एल यू में स्ट्रिंग्स होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इनमें से हर स्ट्रिंग या तो मशीन ए में एक्सेप्टेबल होगी या बी में एक्सेप्टेबल होगी या दोनों में। मेक सेंस? यस सर। तो एक तो तरीका यह है कि हम हर स्ट्रिंग को पकड़ें, हर स्ट्रिंग को पकड़ें
और एक एक स्ट्रिंग को देखते जाएं, मशीन ए इसको एक्सेप्ट करती है, अगर करती है तो टिक लगा दें, अगर नहीं करती तो मशीन बी पे ले जाएं, अगर मशीन बी एक्सेप्ट करती है तो टिक लगा दें, अगर दोनों एक्सेप्ट नहीं करती तो रिजेक्ट कर दें, आप कहें कि ये जो LU है ये रेगुलर नहीं है। सही है, या फिर तो ये यूनियन ही नहीं है ना, रेगुलर की तो बात ही नहीं करनी, ये यूनियन ही नहीं है। तो लेकिन यूनियन तो इसको कहेंगे ना कि इसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स हैं जो LA में और LB में मौजूद है, दोनों में, दोनों का यूनियन, जैसे यूनियन होता है सेट्स का जो यूनियन होता है। अब सवाल यह है कि क्या LU रेगुलर है, क्या LU के लिए कोई एक FSM एग्जिस्ट करता है जो LU को एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज करेगा? दैट्स द क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सो क्या करें, एनी आइडिया? सर जी जी, सवाल है, पूछें प्लीज। सर वो जो आपने प्रीवियस लेक्चर में वो 2 क्वेश्चन दिए थे ना, यूनियन और इंटरसेक्शन, वो सोल्व तो हो गए थे, मे बी वो इस पे भी अप्लाई हो जाए। जी बताएं, उसका क्या हल किया आपने? मैं लिखवा देता हूँ। वो सर स्टेजेस बनाए आप, Q1 Q2 Q4 Q3। नहीं, आपने एक नया FSM बना दिया 4 स्टेट्स वाला। यस सर। जी बताएं जरा। Q1 Q2 Q2 3 4 Q3 एंड Q4। एंड Q4। जी, इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है, या फाइनल स्टेट्स कौन सी हैं? Q3 होगी। एक ही है फाइनल स्टेट? जी सर। अच्छा, Q3 फाइनल है, लेट्स से। स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है? Q1। यस सर। ठीक है, अब Q1 से Q2 पे जाएं और 1 पे एक्सेप्ट होगी। Q1 से Q2, 1 अगर 1 रीड करूं तो Q1 से Q2 पे जाएगा, ऐसे ही है? यस, और बैक पे भी 1 नहीं आ जाएगा। बैकवर्ड भी 1 नहीं आ जाएगा, तो ये तो तकरीबन उसी तरह का आपने बना दिया ना जैसा MA है। सर ठीक है, चेंजिंग है। यस सर। जी जी। आगे Q2 से Q4 पे जाएं, 0 पे वापस, और Q0 से ही आएगा। 0 से 4 पे जाएगा और 0 से ही वापस Q2 पे आएगा, ऐसे ही है? यस सर। 0 एंड 0, ठीक है। जी सर। अब यहाँ से भी 1 से वापस जाएगा और 1 से ही आएगा। Q3 पे यस सर। 1 से Q3 पे जाएगा और वापस भी 1 पे ही आएगा। ठीक है। अब Q1 से Q3 पे 0 पे आएगा, ठीक है, और Q3 पे अगर 0 आ जाएगा तो वो वहीं पे रहेगा फाइनल स्टेज पे। जी सर, ये बनाइए। तो ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक स्ट्रिंग है मिसाल के तौर पे 1 1, ये LA में मौजूद है ना, है ना? जी लेकिन ये इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रही, आपके DFA में, आपके FSM में एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये Q1 से Q2 में जा रहा है, Q2 से फिर Q1 में आ रहा है और खत्म। सर, मैंने तो फिर वो कोई और कंसेप्ट के साथ सोल्व कर लिया था। यूनियन से मैंने मरा ये लिया था कि वो जो पीछे हमने 2 एग्जाम्पलें की थी ना, नंबर ऑफ जो 1 रहेंगे वो इवन होंगे, वो दोनों को मैंने मिला के जो यूनियन आया था ना, उसके हिसाब से सोल्व किया था। वो तो फिर ठीक रहा ना। नहीं, यूनियन से मुराद ये है कि दोनों की स्ट्रिंग्स कंबाइन करके एक नए सेट में लिख दें, और जो स्ट्रिंग्स दोनों में आ रही हैं उनको सिर्फ एक दफा लिखें, मल्टीपल टाइम्स ना लिखें, क्योंकि सेट में चीजें रिपीट नहीं होती। जी यही मैंने किया। लेकिन उसके लिहाज से ये स्ट्रिंग जो है ये चूंकि यूनियन में मौजूद है, लेकिन वो आपका FSM उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कंसेप्ट फिर और हो गया वो। अच्छा एक मिनट, अगर मैं कोई इसको फिक्स करने की मुझे बता सकता है, कोई इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, तो व्हाई डोंट वी ट्राई टू फिक्स इट। अगर मैं Q1 को फाइनल स्टेट बना दूं, विल दैट वर्क?
ये यानी बिल्कुल फाइनल बराबर। स्टेट्स तो मल्टीपल भी हो सकती है ना, एक से जी। ज्यादा। अगर मैं Q1 और Q3 दोनों को फाइनल कर दूं, will that work? Yes, फिलहाल तो the question is for all the students. जी, इसको No, जरा sir. analyze करें. No, which string it is not accepting? Sir, 10001. Even number of zeros and odd number. Even number of ones and odd number of zeros. 10001. 1. So that goes to Q2, then 0, 0, and then 0. No, it is accepting. Oh, sir, yes, sir. It is accepting. 100. 100. ये तो किसी में है ही नहीं. Odd number of, यानी ये तो यूनियन में आएगी भी नहीं ना, ये यूनियन में आएगी भी नहीं, क्योंकि यूनियन में आएंगी जिनमें इवन नंबर ऑफ वंस है या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं. सर या दोनों. 10 भी नहीं होगा. 10, हाँ जी, 10 एक्सेप्ट नहीं हो रहा जनाब, ये वैलिड स्ट्रिंग है. हाँ जी, ये वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो LB में मौजूद है, ये स्ट्रिंग LB में मौजूद है. सो आई गेस दैट्स अ वेरी गुड ट्राई, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग. इट्स अ गुड ट्राई बाय द वे. ओके, जी सर, सही है। Yes. सो इसको मैं इरेज कर दूं. आई वांट टू स्टे ऑन द सेम स्क्रीन. जी सर, कर दें। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्राई बट इट इज नॉट वर्किंग. आई गेस कि इनको यूनियन ऑपरेशन में भी थोड़ा सा वो समझने में भी थोड़ा सा वो था. इन्होंने शायद यूनियन एक फर्क चीज को समझ लिया था, उसके लिहाज से शायद इन्होंने डिजाइन की थी. बट दैट्स अ वेरी गुड ट्राई, वेरी वेरी गुड ट्राई. So let's try to build a finite state machine that accepts both. Here is the algorithm that I'm going to show you, and afterwards I will tell you what that algorithm does. First of all, आप एक स्टेट बनाएं. मैं एक FSM बनाने जा रहा हूं जो यूनियन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है. मेरे साथ साथ रहिएगा, मैं देखते रहिएगा मैं कैसे बना रहा हूं. सबसे पहले आप एक स्टेट बनाएं और स्टेट का नाम रखें लेट्स से Q1 P1, ठीक है. यानी Q1 और P1 जो दोनों की स्टार्ट स्टेट्स थी उनको मिलाएं और एक स्टेट बना दें Q1 P1. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. अब देखें अगर Q1 पे 0 रीड होता है तो वो कहां पे जाएगा, और अगर P1 पे 0 रीड होता है तो वो कहां पे जाएगा. तो सर एक नई स्टेट बना दे Q1 P2. Q अगर मैं Q1 पे 0 रीड करूंगा, विल स्टे ऑन या P2. So that means ऐसे ही है. अब 0 रीड किया तो मशीन 1 क्या करेगी, और वही 0 अगर मैंने रीड किया तो मशीन 2 क्या करेगी. ऐसे है जैसे मैंने दोनों मशीनों को पैरेलल चला दिया. मेक सेंस? Yes, sir. अब सोचें कि अगर Q1 पे मैं 1 रीड करूं तो कहां जाऊंगा, और अगर मैं P1 पे 1 रीड करूं तो कहां जाऊंगा. सो अगर मैं Q1 पे 1 रीड करता हूं आई विल गो टू Q2. अगर मैं P1 पे रीड करता हूं तो आई विल स्टे ऑन P1. सो लेट मी मेक अनदर स्टेट P1 Q2. P1 Q2, and if I read 1 I will go there. Make sense? Yes, sir. So far अगर मैं 0 रीड करूं तो मुझे पता है कि मशीन A क्या करेगी, मशीन B क्या करेगी. और अगर मैं स्टार्ट में 1 रीड करूं तो आई नो कि मशीन A क्या करेगी, मशीन B क्या करेगी. Like the two, I am running the two machines in parallel. Make sense? Yes, sir. Now I will go to Q1 P2, this state. कोई इनमें से एक स्टेट पकड़ें और देखें Q1 P2 पे अगर मैं 0 रीड करूं, अगर मैं Q1 पे 0 रीड करूं आई विल स्टे ऑन Q1, और अगर मैं P2 पे 0 रीड करूं
सो मैं साइड पे लिखता जाता हूं. अगर मैं Q1 पे 0 रीड करूं, आई विल स्टे ऑन Q1. अगर मैं P2 पे 0 रीड करूं, आई विल गो टू P1. So P1. So Q1 P1 already exists. So I will say okay. अगर मैं 0 रीड करूं, I will go there. Make sense? Yes, sir. Now अगर मैं Q1 P2 पे 1 रीड करूं, so if I read 1 on Q1, I will go to Q2. If I read 1 on P2, I will go to P2. Now Q2 P2 does not exist, so I will make another state. Q2 P2, and if I read 1, I go there. Make sense? Yes, sir. Now I will pick, let's say, P1 Q2 or Q2 P1, any one of those. अगर मैं P1 Q2 पे 0 रीड करूं, so if I am at state P1 Q2 and I read 0, so अगर मैं P1 पे 0 रीड करूं, I will go to P2. अगर मैं Q2 पे 0 रीड करूं, I will stay on Q2. So if I read 0, I will go there. And if I read 1, अगर मैं P1 पे रीड करूं, I will stay on P1. अगर मैं Q2 पे 1 रीड करूं, I will go to Q1. So that's Q1. So if I read 1, I will go to P1, Q1. That's a 1. Make sense? Yes? sir. Yes. Now the only state left is Q2 P2. इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर 0 और 1 रीड हो तो क्या होगा. अगर Q2 पे 0 रीड हो तो Q2 पे रहेगा. अगर P2 पे 0 रीड हो तो वो P1 पे चला जाएगा. So P1 Q2, अगर 0 रीड हो तो there. अब अगर यहाँ पे मैं 1 रीड करूं, Q2 P2, so अगर मैं Q2 पे 1 रीड करूं, I will go to Q1. और अगर मैं P2 पे 1 रीड करूं, I will stay on P2. So Q1 P2 अगर मैं 1 रीड करता हूं तो. Yes? Yes, sir. ओके, अब एक चीज ये रह गई है कि स्टार्ट स्टेट तो वही होगी जो दोनों की स्टार्ट स्टेट थी. दैट्स द स्टार्ट स्टेट. फाइनल स्टेट्स कौन सी होंगी? देखें, अगर मैं दोनों मशीन्स को पैरेलल में चला रहा हूं और मेरी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, तो किसी एक मशीन में भी अगर मैं फाइनल स्टेट पे हूं तो मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. यस? यस इसका मतलब है वो तमाम स्टेट्स, ये जो कॉम्बिनेशन हमने स्टेट्स के लिखे हैं, वो तमाम कॉम्बिनेशन जिनमें कोई एक भी फाइनल स्टेट है, दैट इज आल्सो द फाइनल स्टेट ऑफ द यूनियन मशीन. क्योंकि किसी मशीन ए या मशीन बी, इनमें से किसी एक मशीन की भी एक्सेप्टिंग स्टेट में हुई और स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो वो एक्सेप्ट तो हो जाएगी ना. मैं दोनों मशीन्स को पैरेलल में चला रहा हूं. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. Yes. So that means this is final state because Q1 is final. Yes. This is final state because P2 is final. This is Yes, sir. final state because P2 is final. And this is a non-final state, and that is the union. Make sense? Yes, sir. ठीक. सर इसमें Q1 P2 को अगर हम सिर्फ फाइनल स्टेट बना दें. Q1 P2 को जी सर. लेट्स से फिर एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी जो होनी चाहिए. ओ बाय द वे, यहां पे कोई मसला तो नहीं आ रहा? इवन नंबर ऑफ जीरोस. अच्छा, यहां पे मैं कुछ मसले आइडेंटिफाई करता हूं, शायद जो आपको भी नजर आ रहे हो. इवन नंबर ऑफ जीरोस एक्सेप्ट हो रहे हैं. 0 0 है ना? मल्टीपल फाइनल आ गए ना स्टेट्स, इस वजह से शायद. लेकिन सवाल ये है कि क्या इवन नंबर ऑफ जीरोस ये हमारी यूनियन में है? नो. No, sir. नो. Or यार ये एल ए का पार्ट तो है ना. एल ए में क्या था? इवन नंबर ऑफ वंस, जीरोस जितने मर्जी हो. yes, sir.
तो इसमें इवन नंबर ऑफ वंस ही हैं। जी सर। तो So फिर इसके सर रिजेक्ट क्या होगा सर? रिजेक्ट होगा, मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पे रिजेक्ट होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस भी ना हो और ऑड नंबर ऑफ जीरोस भी ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे ये स्ट्रिंग है ना, ये दोनों में नहीं है, और ये आप देखें मेरा ख्याल है ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है सर। सो वो स्ट्रिंग्स जो दोनों में नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, जो एल ए में भी नहीं है एल बी में भी नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। होने भी वही चाहिए, यही तो हमारा गोल था। यस यस सर। और ये मैंने एग्जांपल ये ली है, दैट्स अ जनरल एल्गोरिथम। अगर आपको दो मशीन्स गिवन हो, वो दोनों मशीन्स दो लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, उनका यूनियन रेगुलर होगा, क्योंकि यूनियन वाली जो लैंग्वेज है उसका फाइनाइट स्टेट मशीन हमेशा बनाई जा सकती है थ्रू दिस एल्गोरिथम। इट मे बी अ वेरी बिग मशीन, क्योंकि काफी सारे कॉम्बिनेशंस हमें देखने पड़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैविंग अ मशीन। दैट्स द आर्गुमेंट। ओके, यस सर। सो हमारे पास टाइम कितना रह गया मुझे बताते रहिएगा। आई डू नॉट हैव माई वॉच टुडे। क्या टाइम हो चुका है? 10:36. 10:36. So okay, we have good time. We still have time. So this is yes. Okay, make sense? Yes, sir. What about this intersection? Yes, sir. Regular. इंटरसेक्शन भी रेगुलर होगा कैसे? मिसाल के तौर पे ये दो मिसालें। अब इंटरसेक्शन Sir- वो होगा, वो वाली स्ट्रिंग्स जो दोनों में मौजूद हैं, यानी आप अगर पैरेलल में चलाएं तो दोनों एक्सेप्ट हो, दोनों अगर एक्सेप्ट हो, आप अगर दोनों मशीन्स को पैरेलल में चला दें तो जब स्ट्रिंग फिनिश हो तो दोनों मशीन्स अपनी एक्सेप्ट स्टेट में हो, तब आपने एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करना। सो हाउ टू बिल्ड सच अ मशीन? मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक बार दोबारा बता दो। इंटरसेक्शन Example क्या से- होगा? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, यानी जो दोनों में ही मौजूद है। अगर मैं पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात करूं तो मैं मशीन, एक स्ट्रिंग आती है, वो मैं मशीन ए भी चला देता हूं, मशीन बी भी चला देता हूं पैरेलल में। जब स्ट्रिंग फिनिश हो तो मशीन ए भी एक्सेप्ट स्टेट में हो और मशीन भी एक्सेप्ट स्टेट में हो, तो फिर वो स्ट्रिंग दोनों लैंग्वेजेस में। मेक सेंस? ठीक है सर। यस। तो कैसे बनाऊं इस तरह की एफएसएम? हिंट, एफएसएम का सारा स्ट्रक्चर यही होगा, क्योंकि सर इसका, सर मैं बताऊं जी सर जी अगर बताएं। फाइनल स्टेट सर, ये जो फाइनल स्टेट होगी ना, जी जी, इसकी फाइनल स्टेट Q1 P2 होगी, क्योंकि दोनों यस जो Q1 P2 है दोनों फाइनल स्टेट होंगे। बस एग्जैक्टली यही फाइनल स्टेट होगी एक। एग्जैक्टली, दिस इज द ओनली फाइनल स्टेट। वो वाली स्टेट जो दोनों फाइनल है, दैट्स द ओनली फाइनल, क्योंकि अगर दोनों की फाइनल स्टेट में आप पहुंचे और अब स्ट्रिंग खत्म होगी तो देन ओनली देन इट शुड एक्सेप्ट, नॉट अदरवाइज। सो इस केस में जो Q1 P2 ये जिसको हमने फाइनल किया था, इट इज नो लॉन्गर फाइनल, दिस इज नो लॉन्गर फाइनल, दिस इज द ओनली फाइनल स्टेट, एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज एग्जैक्टली सेम। दोनों मशीन्स को पैरेलल में चला दें, अगर स्ट्रिंग फिनिश हो और आप मशीन ए की भी फाइनल स्टेट में मौजूद हो और मशीन बी की भी फाइनल स्टेट में मौजूद हो, देन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज डोंट एक्सेप्ट। यस, cool. So if two languages are regular, their intersection is also regular. Yes. Clear hai? यस सर। Okay. Now let's move to concatenation. This is yeah, this is a difficult thing. Anyways, what do you think about concatenation? If I have two languages
and I have another language that is just concatenation of the two languages, A and B, does that concatenated language a regular language? Can I have a finite state machine for it? That's my question. So for example, our concatenations are from MA to MB. The concatenation is from A to B. Is this regular? That's a difficult question, by the way, but let's spend some time on it. Maybe it is that easy. Maybe it is as easy as complement, as union, as intersection. May not be easy at all, but let's think about it. Any suggestions? First of all, the answer is yes. The answer is yes for reverse. The answer is yes for concatenation. But how come? Answer is yes, that I'm telling you. How come? How can we build a finite state machine? मेरा सवाल समझ में आ गया आपको? सर एक बार दोबारा समझा। सवाल ये है कि अगर मैं A और B को कंकैटिनेट कर दूं जिसमें A पहले आए B बाद में आए, तो एक ऐसी लैंग्वेज जो है उसके लिए फाइनाइट स्टेट मशीन बनाई जा सकती है या नहीं? अगर तो फाइनाइट स्टेट मशीन बनाई जा सकती है तो उस लैंग्वेज को जो कंकैटिनेटेड लैंग्वेज है उसको हम कहेंगे कि दैट्स रेगुलर, और अगर नहीं बनाई जा सकती तो हम कहेंगे कि यार ये रेगुलर नहीं है। अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि कंकैटिनेशन ऑपरेशन जो है इट प्रिजर्व्स रेगुलरिटी, व्हिच मींस अगर आपके पास दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, आप उनको कंकैटिनेट करें, जो रिजल्टेंट लैंग्वेज होगी वो भी रेगुलर होगी। बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। यस, द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रूव इट, हाउ टू कम अप विद अ फाइनाइट स्टेट मशीन। किसी लैंग्वेज को LAB को अगर आपने प्रूव करना है कि ये रेगुलर है तो आपको इसके लिए एक फाइनाइट स्टेट मशीन बनानी पड़ेगी। अभी तक आपने देखा कि यूनियन रेगुलर था, इंटरसेक्शन रेगुलर था, कॉम्प्लीमेंट रेगुलर था। व्हाट अबाउट कंकैटिनेशन? क्लियर है? Let me give you a little bit more intuition in this problem. Think about machine 1 like this box that has incoming arrow, okay? And it may have several finite states, maybe 1 or 2 or 3 or 4. Let's say 2 final states. There is a final state from which an arrow is coming. There's another final state in which an arrow is coming. And again, let's say there is machine M2 or MA, MB. As a standalone, there is only one arrow that is coming in. And maybe there are multiple final states. By final state, I mean that's the answer that will tell yes or no or stuff like that. What I'm trying to do is I somehow want to connect the final state of machine A to the start state of machine B in a linear order. So think about final state of machine M and think about the start state of machine B. What I really want to do is doing this. I want to do this. Whatever that reaches here, and then we start processing the string of, so that part is B, that part is A. I want this connection. मेरी बात समझ रहे हैं आप? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So how to come up with this connection? That's the problem. I mean, I want के
स्ट्रिंग का वो वाला हिस्सा जो ए में था वो ए की एक्सेप्ट स्टेट में ले आए, और स्ट्रिंग का वो वाला हिस्सा जो बी का पार्ट है वो बी की स्टार्ट स्टेट से शुरू हो और बी के वहां तक ले जाए। और इस केस में ये जो ए की फाइनल स्टेट है ये फाइनल भी नहीं रहेगी, इसको हम नॉन फाइनल कर देंगे। मेक सेंस? बी की फाइनल स्टेट्स विल स्टे एज फाइनल स्टेट्स, जितनी भी ए की फाइनल स्टेट्स हैं वो फाइनल नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये तो बड़े आसान है। यानी अगर ए के अंदर 2 या 3 फाइनल स्टेट्स थी तो मैं उनको नॉन फाइनल करता हूं और उनसे एरोस डाल देता हूं बी की इनिशियल स्टेट के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि इन एरोस के ऊपर लेटर कौन से होंगे, 0 1 कौन से? मेरी बात समझ में आ रही है? यस जी सर। जी सर। So the question really is, ये जो कनेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं ए की फाइनल स्टेट से बी की इनिशियल स्टेट के ऊपर, what is the alphabet on it? और ये मल्टीपल एरोज हो सकते हैं, हर फाइनल स्टेट से स्टार्ट स्टेट की तरफ एक एरो जा रहा होगा। बी की स्टार्टिंग स्ट्रिंग का पहला लेटर, जी, बी की स्टार्टिंग स्ट्रिंग का पहला बी की स्टार्टिंग स्टेट का जो पहला लेटर है वो तो उसको अपनी उस स्टेट पे ले जाएगा ना जहां पे जाना चाहिए था। जी जी, या फिर ए फिनिश हो जाएगी ना, जी, तो कंकैटिनेशन में अगला हिस्सा बी वाला होगा। अगला हिस्सा बी वाला होगा। तो कंकैटिनेशन उसका जो स्ट्रिंग शुरू होने से पहले जो पहला लेटर होगा वो यहाँ से इसके इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन असल में तो जो मशीन बी है वो अपना जब पहला लेटर रीड करती थी तो वो तो किसी और स्टेट में ले जाती थी ना उसको। जी जी, तो यहाँ पे फिर दोनों कर लें, 0 भी आए तो भी आगे चले जाए, 1 भी है तो भी आगे चले जाए। 0 आए तो भी इधर आ जाए, 1 आए तो भी इधर आ जाए। क्योंकि ये वाला पोर्शन तो फिनिश हो गया, तो अब हमने बी पे जाना है। हाँ, तो इसका मतलब है कि चाहे 0 आए चाहे 1 आए आप इधर आ जाएं। तो अब हमने एक लेटर तो कंज्यूम कर लिया, ये 0 या 1 जो स्ट्रिंग में से हमने रीड कर लिया, लेकिन हम अभी तक स्टार्ट स्टेट में पहुंचे हैं। हालांकि एक लेटर कंज्यूम करके हमें स्टार्ट स्टेट से आगे जाना चाहिए था ना। तो सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा कंकैटिनेशन में। जी, क्या करना पड़ेगा? कंकैटिनेशन में कोई सब्स्टिट्यूट रखना पड़ेगा। पता नहीं, आप बताएं। मे बी। सर ए की फाइनल स्टेट बी की इनिशियल स्टेट नहीं बना सकते? ए की फाइनल स्टेट बी की इनिशियल स्टेट अगर बन जाए तो, और ए की, याद रखें ए की मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, तो जी। फिर देखें ए की फाइनल स्टेट जो होगी उसके अपने कुछ एरोज होंगे ना, कि अगर 0 आए तो इधर जाओ, 1 आए तो इधर जाओ। अगर इसको मैं बी की इनिशियल स्टेट बना देता हूं तो बी की इनिशियल स्टेट के अपने कुछ एरोज हैं, 0 आए तो इधर जाओ, 1 आए तो इधर जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी सर। इसका मतलब है कि 1 आए तो इधर भी जाओ, 1 आए तो इधर भी जाओ, ये तो पता नहीं चलेगा 1 आके इधर जाना है या इधर जाना है। टाइम, मुझे काइंडली टाइम बताते रहिएगा। आई वांट टू finish this topic of concatenation today. So 48. 48, so we still have time. Great. So let me tell you something. I'm going to introduce non-determinism in finite state machines. What do we mean by non-determinism? Let me tell you. अभी तक आप जो देखते रहे हैं finite state machine, वो ये होती थी कि अगर आपके पास एक स्टेट है, लेट्स से Q1, और आपके पास एक स्टेट है, लेट्स से Q2, तो आपके पास और एक स्टेट है, लेट्स से Q3, लेट्स से, तो अगर आप Q1 पे हैं और अगर आप 1 रीड करते हैं तो आपके पास एक डिटर्मिनिस्टिक नेक्स्ट स्टेट होती है जहां पे आपने ट्रांजिशन करनी है। यानी Q1 पे आपको श्योर है कि अगर 1 रीड करें तो ये स्टेट है, जो भी नेक्स्ट स्टेट है उस पे मैंने जाना है, वो Q1 है या जो भी है, दैट्स अ डिटर्मिनिस्टिक डिसीजन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन में ये होता है कि यू हैव मल्टीपल स्टेट्स टू गो। अगर आप Q1 पे लेट्स से 1 रीड करते हैं तो यू कैन गो टू Q2 और यू कैन गो टू Q3। इसको एग्जैक्टली ऐसे ही चलें, समझें जैसे
मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलल में चलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। यानी Q1 पे थे आप, आपने 1 रीड किया तो एक थ्रेड चलेगा जो Q2 पे ले जाएगा, एक और थ्रेड चलेगा जो Q3 पे ले जाएगा, और ये दोनों थ्रेड पैरेलल में चलना शुरू हो जाए। थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग, या इसको आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। यस सर, पढ़ा था जी। अब अगर आप Q2 पे हैं और यहाँ पे आप 0 रीड करते हैं तो आप किसी एक स्टेट पे जाएंगे, और हो सकता है 0 रीड करें तो आप किसी और स्टेट पे चले जाएं, और हो सकता है 0 रीड करें तो आप किसी और स्टेट पे चले जाएं। अब ये थ्रेड्स जो है ना ये बढ़ते जाएंगे, यानी Q1 पे 1 रीड किया तो एक थ्रेड शुरू हुआ, उस थ्रेड में जाके 0 रीड किया तो एक और थ्रेड बन गया, फिर 0 रीड किया तो एक और थ्रेड बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? अ लॉट ऑफ पैरेलल थ्रेड्स। यस। यस। इसको ऐसे समझे जैसे एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है कि एक अल्फाबेट रीड करता है और कई छोटे छोटे थ्रेड्स या प्रोसेसर्स पे चला देता है। मेक सेंस? Yes. अच्छा, एक तो नॉन डिटर्मिनिज्म अगर हम फाइनाइट स्टेट मशीन में डाल दें तो एक तो नॉन डिटर्मिनिज्म इस तरह का है कि एक स्टेट से एक अल्फाबेट रीड करके आप मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं, यानी मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल फाइनाइट स्टेट मशीन्स आप पैरेलल में चला सकते हैं। इसको ऐसे समझ लें आप, हर एक एरो जो है वो एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, दूसरा एरो जो है वो दूसरी एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, जो दोनों पैरेलल में चल रही हैं। इसको ऐसे समझ लें आप। यस? यस सर। यार मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्लास को 31 लोग मौजूद हैं, एक ही बंदा रिप्लाई कर रहा है। यस सर, आ रही है। बातें समझ में आ रही हैं? मुश्किल तो नहीं है ज्यादा? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जितनी थोड़ी बहुत मुझे पता है मैं आपको सही तरह से बताऊं। इज दैट ओके? सर समझ आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। ओके, सो आई विल कंटिन्यू। शाय स्टूडेंट्स विल स्टे शाय। वो कभी भी नहीं पूछेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, और वो पूछेंगे भी नहीं, और वो एंड पे कहेंगे सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, सर प्लीज ये कर दें, सर प्लीज वो कर दें। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही, दिस इज द टाइम टू आस्क, डोंट हेजिटेट। इज दिस फाइन? शुड आई मूव ऑन, और डू यू हैव कंफ्यूजन्स? सर क्लियर। जी बताएं। रोल नंबर 2 जी बताएं। रोल नंबर 2 आप कुछ कहना चाह रहे थे? मोहम्मद क्लियर है, हमाद। कोई क्वेश्चन? मुझे नहीं समझ आई, दोबारा से बताएं, सॉरी। वो उसने कहा है क्लियर है। क्लियर है, ओके, आई एम मूविंग ऑन। ग्रेट, दैट्स ऑसम। सो एक तो नॉन डिटर्मिनिज्म इस तरह का है ना, और बाय द वे ये अब तक जितनी आपने फाइनाइट स्टेट मशीन्स पढ़ी हैं इनको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन्स। मैंने अब तक डिटर्मिनिस्टिक का वर्ड खुद से यूज नहीं किया था, क्योंकि जब तक आप नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं बताते, डिटर्मिनिस्टिक तो आप बता नहीं सकते। यानी अगर नॉन डिटर्मिनिज्म है ही नहीं तो फिर डिटर्मिनिस्टिक का कीवर्ड लगाने का फायदा ही नहीं है। सो अब आपको पता चलना चाहिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन ऐसी होती है जिसमें एक स्टेट से एक अल्फाबेट रीड करके आप मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन वो है जो अब तक आपने देख ली है। जस्ट मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता दूं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन को नॉर्मली लोग डीएफए भी कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आप चाहे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन कह लें या डीएफए कह लें, यानी कुछ किताबों में, कुछ लेक्चर्स में अगर आप देखें तो आपको डीएफए की टर्म मिलेगी, और ये ज्यादा पॉपुलर है डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दैट मींस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन। सही है? यस? जी सर। और ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन है इसको नॉर्मली लोग एनएफए कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए। सो ये कॉमन टर्म्स हैं, यानी आप किसी से बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, और अगर उसको इस सब्जेक्ट का पता है तो वो आपसे नॉर्मली इन टर्म्स में बात करेगा, डीएफए, एनएफए।
rather than DFSM and DFSM. He will talk about DFA and FA. Clear? Yes, sir, clear. Okay, so from now on, we will also be talking about DFA and NFA. NFA means non-deterministic finite state machine or non-deterministic finite automata, and DFA means deterministic finite state machine. Yes? Yes, sir. There is another mode of non-determinism. One mode is you have, आप किसी एक स्टेट में हैं और आप एक अल्फाबेट को रीड करते हैं and you have now multiple states to go. एक non-determinism इस टाइप का है. एक non-determinism है E epsilon transition. ये बड़ा अजीब किस्म का है और बड़ा पावरफुल है. ये है कि अगर आप Q1 पे हैं और आप Q2 और फिर आप लेट्स से ये इसको कहते हैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन या ई ट्रांजिशन. इसका मतलब ये है कि आप Q1 पे हैं और आपने कुछ भी रीड नहीं किया और आप Q2 पे चले गए. आपकी मर्जी, आप Q1 पे रहें या आप Q2 पे चले जाएं. मेक सेंस? यस सर, ठीक है. ये भी बड़ी अजीब बात है. आप Q1 पे बैठे हुए हैं, अभी तक आपने लेटर रीड नहीं किया, आपकी मर्जी, आप Q1 पे रहें या Q2 पे चले जाएं. तो आप नॉन डिटर्मिनिस्टिकली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मेक सेंस? सर, यस. आपकी आवाज नहीं आई. सर वो दरमियान में आपकी वीडियो रुक गई. वीडियो रुक गई थी. कहां से कितना टाइम अंदाजन गुजर गया होगा? आपने शुरू ही किया था अभी. अभी आप पूछने ही लगे थे ये क्वेश्चन. यस. मैंने ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन का बताया था, ये समझ आई या नहीं? या मैं यस सर, ये हो गया. सो एप्सिलॉन ट्रांजिशन ये है कि आप डिसाइड करें, यानी विदाउट रीडिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग, you have a choice, you stay on Q1 or you go to Q2 or even you go to Q5. Make sense? यस सर. एक नॉन डिटर्मिनिज्म ई ट्रांजिशन टाइप का है. एक नॉन डिटर्मिनिज्म है कि अगर आप एक लेटर रीड कर लेते हैं तो अब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं. यस? यस सर. अच्छा, अब अगर मैं आपको पैरेलल थ्रेड्स बताऊं कि पैरेलल थ्रेड्स किस तरह के होंगे, मिसाल के तौर पे ये एक NFA है, इसके पैरेलल थ्रेड्स किस तरह से बनेंगे? तो पैरेलल थ्रेड से मेरी मुराद ये है कि अगर मैं Q1 पे हूं, और मैं 0 रीड करता हूं तो मैं कहां पे हूंगा, और अगर मैं 1 रीड करता हूं तो मैं कहां पे हूंगा? मेक सेंस? यस सर. यस सर. सो लेट्स सी, अगर मैं 0 रीड करता हूं, यहां पे अगर मैं 0 रीड करूं तो आई विल गो टू अ डेड स्टेट. वो वाली स्टेट जो यानी जो अचीवेबल नहीं है, आई विल कॉल दैट स्टेट एज अ डेड स्टेट. सो आई विल, अगर मैं 0 रीड करता हूं, आई विल गो टू अ डेड स्टेट. मेक सेंस? यस? यस. यस सर. लेकिन अगर मैं 1 रीड करता हूं, तो आई कैन बी वेयर. अगर मैं 1 रीड करता हूं तो आई कैन बी एट Q4. यस? क्योंकि Yes. Q1 पे मैंने 1 रीड किया, हो सकता है मैं
व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? Q1 पे मैंने 1 रीड किया, द पॉसिबिलिटी इज के एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि Q1 पे मैंने 1 रीड किया, आई कैन बी इन द डेड स्टेट अगर मैं Q1 पे ही था तो। यस यस सर। अगर मैं Q1 पे स्टे किया हुआ था मैंने और मैंने 1 रीड कर लिया, आई विल बी इन द डेड स्टेट। अगर मैं Q1 पे था और मैंने 1 रीड करने से पहले Q2 पे चला गया, बिकॉज आई हैव अ लिबर्टी टू गो देयर, और फिर मैंने 1 रीड किया, तो इनपुट में से तो अभी सिर्फ 1 ही रीड हुआ है ना। यस जी सर। सो आई कैन बी इन Q4। और सिमिलरली Q1 से अगर मैं 1 रीड करता हूं तो आई कैन बी इन Q6 यस सर। or I can be in Q7. Yes? Yes, यस sir. सर। Now I can further expand कि dead state हमेशा याद रखें वो होती है कि जहां से आपने वहीं पे रहना है। You cannot escape this. Clear है? यस सर। अब Q4 पे अगर मैं 1 रीड करता हूं तो कहां कहां जाऊंगा, 0 रीड करता हूं तो कहां कहां जाऊंगा। These are all the parallel threads. Make sense? यानी अगर आप इसमें से किसी एक पर्टिकुलर पाथ को चूज कर लें डाउन टू एंड, दैट इज 1 थ्रेड, और 1 पॉसिबिलिटी के स्ट्रिंग इस तरह से रीड की है या स्ट्रिंग से इस तरह की ट्रांजिशंस हुई हैं। आप यहां पे अगर इस ट्री के लीव्स देखें, यहां पे नीचे, तो हर लीव पे पहुंचने के लिए एक यूनिक पाथ होगा। यस यस सर। and these are several paths. Think about each path as a parallel execution. All the paths are parallelly executable, let's say. It looks like NFA is very, very powerful. I mean, you are reading a string and that string is processed by several threads in parallel. Clear? यस सर। अब सवाल ये है कि NFA भी एक मशीन है जैसे कि DFA एक मशीन होती है, तो NFA किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कब करेगा? NFA accepts a string W1 means what? क्लियर है? यस सर। यानी NFA किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, इससे क्या मुराद है? तो याद रखें NFA के अंदर भी इनिशियल स्टेट होती है यूनिक, मतलब इनिशियल स्टेट यूनिक तो इस फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेट Q1 है तो Q2 भी ई ट्रांजिशन की वजह से इनिशियल हो सकती है, Q5 भी इनिशियल हो सकती है, लेकिन लेट्स से इनिशियल स्टेट है कोई, और इसमें भी फाइनल स्टेट एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं फाइनल स्टेट्स। ठीक है, जैसे Q4 फाइनल है, ये NFA मैंने बनाया हुआ लेट्स से। तो NFA के भी अंदर बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ ट्रांजिशन में हम बाकी सारी चीजें वही हैं, इनिशियल स्टेट भी होगी, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स भी होंगी, सारा कुछ, लेकिन जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो एम्बिगुअस होगा। यानी Q5 से अगर आप 1 रीड करते हैं, यू कैन गो टू मल्टीपल स्टेट्स रादर देन मे बी 1। सो ट्रांजिशन फंक्शन थोड़ा सा फर्क होगा। सो NFA एक्सेप्ट करता है किसी स्ट्रिंग्स को, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ पाथ to final state in NFA। यानी आप इसको यूं समझें कि मैंने स्ट्रिंग थी 0 1 1 0 0 1 0, ये रीड की, तो जब मैंने 0 रीड किया तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कहां जाना है। उसके बाद मैंने 1 रीड किया तो 1 मुझे यहां पे भी ले जा सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। अब ये सारे थ्रेड्स वेट कर रहे हैं अगली स्ट्रिंग, अगली अल्फाबेट का। तो जब मैं अगला अल्फाबेट रीड करूंगा तो मैं जहां जहां खड़ा था वहां से मैं कहां कहां जा सकता हूं, तो काफी सारे थ्रेड्स बनते जाएंगे ना। यस सर। अब जब मैं आखिरी अल्फाबेट रीड करूंगा तो आखिरी अल्फाबेट फाइनल ट्रांजिशन, सारे थ्रेड्स अपनी फाइनल ट्रांजिशन लेंगे, तो वो फाइनल ट्रांजिशन में से अगर कोई एक या एक से ज्यादा थ्रेड्स फाइनल स्टेट में हुए तो मैं कहूंगा NFA एक्सेप्ट्स दिस स्ट्रिंग अदरवाइज रिजेक्ट्स। यानी ये जितने भी थ्रेड्स हैं, ये जितने भी पाथ्स हैं,
इनमें से कोई एक पाथ भी ऐसा हुआ जो फाइनल अल्फाबेट को रीड करने के बाद फाइनल स्टेट में हुआ, तो आई विल से NFA एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग, अदरवाइज रिजेक्ट। मेक ठीक है। सेंस? यस, यस सर, यस सर। क्लियर है सर। ये क्लियर है? सर इसमें वो रिवर्स नहीं जा सकते हम, जैसे Reverse? DFA रिवर्स कैसे? वो जो एक स्टेट पे आते थे फिर वापस दूसरी स्टेट पे चले जाते थे। चले जाएं, ये लें। ठीक है। मतलब NFA भी फर्क फर्क होते हैं, ये अब कोई फर्क NFA बन गया, पहले कोई और था, ये मर्जी नहीं है कैसे ही, ठीक है। ये एक और NFA है, पहले वाला NFA कोई और था, और हो सकता है दोनों सेम ही हो, वी डू नॉट नो। ठीक है। लेकिन that- ये लिबर्टी हमारे पास है, NFA में ये अलाउड है। ओके सर। सर डेड स्टेट यही है ना कि जिसका आगे कोई पाथ ना हो, डेड जिस तरह स्टेट, जी जी, इसका आगे कोई बात नहीं है। जिस तरह से ये Q6 है, इसका अगर 1 आता है तो इसका आगे कोई पाथ नहीं है, तो ये डेड स्टेट है। हाँ जी, और अगर 0 आएगा तब भी आगे कोई बात नहीं है, तो ये डेड स्टेट पे जाएगा। ये डेड स्टेट नहीं है, ये डेड स्टेट पे 1 और 0 डेड स्टेट पे लीड करेगा, कोई एक डेड स्टेट होगी। अगर आप Q1 पे 1 रीड करते हैं तो आप डेड पे जाएंगे, 0 रीड करते हैं तो आप डेड पे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1 0 रीड करते हैं तो डेड पे जाएंगे, एंड सो ऑन। यानी डेड स्टेट अलग से बनानी पड़ेगी हमें। अलग से बनाना बेहतर है, हाँ जी, अलग से बनाना बेहतर है, इन्हीं में से कोई एक बनाना जरूरी नहीं, अलग से बनाना बेहतर है। बाय द वे, जब आप DFA या NFA बना रहे हो तो अगर ज्यादा स्टेट्स आपने बनानी है तो बना लें, इट डजंट मैटर। बाद में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार मैंने अगर स्टेट्स काफी ज्यादा बना ली हैं तो मुझे थोड़ी स्टेट्स बनानी चाहिए थी। सो DFA मिनिमाइजेशन भी होती है, यानी आप एक गंदा सा DFA या NFA बना लें जिसमें काफी सारी स्टेट्स हैं, और बाद में आपको कोई यार ये तो सिर्फ 3 स्टेट से हो सकता था, तुमने हमें इतनी बना दी है, तो वो एक एल्गोरिदम है जिससे बाद में आप नंबर ऑफ स्टेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टार्ट में आप, मेरा ख्याल है, इट्स ओके टू गो विद रफ स्केच और मे बी अ स्केच दैट इज not so needed, but that is correct. Make sense? ओके। यस। Okay. Okay, so now if you think about concatenation, LAB, then there is L, that's machine, M1, it has, let's say, 3 final states. I'm converting all the final states to non-finals. I'm writing an E transition to the initial state of M2, और उसकी जो final states हैं वो finally रहेंगी, and the rest of the things are as it is. That's an NFA. That's an NFA because there is a non-determinism there that accepts LAB. Make sense? यस सर। अब सवाल ये है कि LAB रेगुलर है या नहीं है। कोई भी लैंग्वेज रेगुलर होने के लिए कोई DFA एग्जिस्ट करना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करे। यहां पे हमने NFA बना दिया जो एक्सेप्ट कर रहा है, और NFA बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है ना। आप यानी ई ट्रांजिशंस लगा दें और आप कहें अच्छा जो स्ट्रिंग्स हैं जब तक उसका M1 पोर्शन था आप यहां पे पहुंचे, और अब आपके पास चॉइस आप यहीं पे रहें या आगे चले जाएं, तो जो यहीं पे रहने वाले थ्रेड हैं वो डाई हो जाएंगे, जो आगे जाने वाले थ्रेड हैं वो लीड करेंगे फाइनल स्टेट्स को, और अगर आप स्ट्रिंग के एंड तक किसी एक फाइनल स्टेट पे भी पहुंचे हुए हैं तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। यस, इट लुक्स लाइक अ सुपर कंप्यूटर दैट हैज अ लॉट ऑफ थ्रेड्स इन देयर, और कोई एक भी थ्रेड अगर फाइनल स्टेट पे ले गया द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, और इस केस में every string in LAB will be accepted. Yes? यस सर। So NFA recognizes LAB. But does that mean LAB regular? Because for a language to be regular, there must be a DFA to accept it. Clear it? यस सर। So the answer is the following. Yes, LAB is regular. Why? We can convert any NFA
to some DFA. There is an algorithm जो NFA को लेगा और उसको एक इक्विवेलेंट DFA में कन्वर्ट कर देगा, NFA to DFA कन्वर्जन, और वो DFA वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा जो NFA एक्सेप्ट कर रहा था. दिस एल्गोरिथम इज पॉसिबल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप ये पढ़ेंगे. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. So which means कि अगर कोई लैंग्वेज NFA में एक्सेप्ट हो रही है तो वो रेगुलर है, क्योंकि उसके लिए एक DFA भी एग्जिस्ट करता है. अब सवाल ये है कि अगर फाइनली DFA ही बनाना था तो NFA इंट्रोड्यूस क्यों किया? बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसके लिए बड़ी जल्दी से अगर हम सिर्फ स्केच NFA का स्केच कर देना तो NFA का स्केच बनाना बड़ा आसान है. ई ट्रांजिशन लगा दें, मल्टीपल एरोज लगा दें और कहें कि पता नहीं, लेकिन ये देखें ये एक्सेप्ट हो जाएगी. NFA बनाना बहुत क्विक है, बड़ी जल्दी से आप बना सकते हैं. ठीक है, और आप बड़ी जल्दी से देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, क्योंकि NFA इसके लिए बनाना इजी है. DFA में तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड. 0 आएगा तो कहां जाना है, 1 आएगा तो कहां जाना है, स्टारी स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स, ई ट्रांजिशंस भी नहीं है, कोई नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है. बिल्कुल स्टार्ट में DFA बनाना इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. हो सकता है आपके लिए NFA बनाना आसान हो. वेरी क्विकली आप यू कम अप विद अ स्केच के यार ये देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि come up with a language that accepts even number of ones, so that's okay. Sorry. That accepts even number of ones. Sorry, this and that. That's it. ठीक है. You need not to write any further specifications. I mean, that's an NFA that accepts even number of ones. अब अगर आपने कहना है कि नहीं यार ये रेगुलर है या नहीं है, तो there exists an algorithm जो इसके लिए आप DFA equivalent DFA बना लेंगे. So NFA by construction is very simple and it's powerful enough कि आप अगर सिर्फ NFA बना लेते हैं तो it means that a language is regular, because for every NFA there exists a DFA. Clear है? Yes, sir. So now मैंने चूंकि ये आपको एल्गोरिथम अभी तक नहीं पढ़ाया, हाउ टू कन्वर्ट NFA टू DFA. द एल्गोरिथम इज वेरी वेरी सिंपल टू, जो हमने ये एल्गोरिथम देखा था कि यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं. The algorithm is much simple, much similar to the one we saw in doing the union, but that we will see later on. Clear है जी? ठीक है. Yes, sir. So अगर वो हम एल्गोरिथम देख Yes. लें, ये भी yes है. अगर हम एल्गोरिथम देख लें, और यही नॉन डिटर्मिनिज्म जो है ये हमें बताएगा कि रिवर्स कैसे yes है. जब आप किसी भी लैंग्वेज का रिवर्स करते हैं तो उसके सिर्फ सारे एरोज आपने चेंज करने हैं. ठीक है, एरोज सारे के सारे चेंज कर दें. जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको इनिशियल बना दें, जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल बना दें, तो वो आपका रिवर्स स्ट्रक्चर बन जाएगा. लेकिन आप देखेंगे जब भी आप रिवर्स स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देयर विल बी अ नॉन डिटर्मिनिज्म. क्यों? क्योंकि एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर ये क्वेश्चन नंबर 1 वाली स्लाइड दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है. यार ये वीडियो है तो सही आपके पास. ये सुननी पड़ेगी सर सारी. ओए होए, ये स्लाइड कि ये वाली? 1 वाली सही है. क्वेश्चन 1 है ही नहीं यार, किधर है? 2 से पहले वाली स्लाइड. ये वाली? नहीं पीछे करें. ये वाली? इससे पीछे. बस ये हाँ ले ले. बस ठीक है, थैंक यू. अच्छा, एनीवेज, सो मैं ये बता रहा था कि जब आप रिवर्स करेंगे ना तो स्ट्रैटेजी ये होगी कि जो आपकी फाइनल स्टेट्स हैं, एक या एक से ज्यादा, वो इनिशियल बन जाएंगी, और जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो फाइनल बन जाएगी. और एक और चीज जो आप देखेंगे, आपने एरो सारे रिवर्स करने, यानी जो इसकी तरफ 1 लेके आ रहा है वो आपने रिवर्स करना है कि अगर 1 रीड करेंगे तो वापस जाएंगे. अब इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म इस तरह से आएगा कि अगर एक स्टेट है, मल्टीपल जगहों से अगर 1 उस पर आ रहा है, तो DFA में तो ये पॉसिबल है. DFA में तो ये पॉसिबल है कि कई डिफरेंट स्टेट्स हैं
और वहां से 1 आ रहा है स्टेट के अंदर। लेकिन जब आप इसको रिवर्स करेंगे, यार ये कोई सीटी बजा रहा है, मेहरबानी करें सीटी ना बजाएं। तो मेरे का माइक ऑन है। एनीवेज, जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो यू विल बी हैविंग 1 गोइंग टू सेवरल स्टेट्स। यस Yes, sir. Yes, sir. एंड दैट्स एनएफए। यानी जब आप रिवर्स करेंगे, डीएफए को पकड़ के रिवर्स कर दें, फाइनल्स को, सारी फाइनल्स को इनिशियल बना दें और एक इनिशियल को फाइनल बना दें और सारे एरोज को रिवर्स कर दें, जहां से आ रहे हैं वहां वापस भेज दें। जैसे ही आप करेंगे तो रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो डीएफए नहीं रहेगा, वो एनएफए बन जाएगा और वो एनएफए रिवर्स को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि रिवर्स रेगुलर है या नहीं है। द आंसर इज यस, क्योंकि एनएफए से आप कभी भी डीएफए बना सकते हैं। यस, Yes. so this is also yes. Yes, sir. This is also yes if we know the algorithm to convert from NFA to DFA. Yes? सर जो जी Yes, जी। जो स्टार्ट होगी वो तो फाइनल बन जाएगी। सॉरी, सर जो स्टार्ट होगी वो तो फाइनल बन जाएगी और जो फाइनल जो मल्टीपल्स होंगे तो फिर स्टार्ट मल्टीपल्स बन जाएंगे इसमें। मल्टीपल स्टार्ट्स बन जाएंगी। ई ट्रांजिशन डाल दें, पीछे एक स्टेट डालें जो एक ही स्टार्ट हो, उससे ई ट्रांजिशन, एप्सिलॉन ट्रांजिशन डाल दें सारी फाइनल्स को, स्टार्ट एक बना लें। Yes, sir. समझ आई? ओके, आगे से। ग्रेट। सो यार ये मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ।